ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں 12 سال کی تھی جب مجھے پہلی بار کوئی پسند آیا تھا۔ وہ میری کلاس میں پڑھتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ مجھے اچھا لگنے لگا، مگر وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے زندگی میں ہر شے کو اپنا بنانے کے لیے ہر داؤ کھیلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ 12 سال کی عمر میں تو محبت کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے، مگر میں بے وقوف تھی جو اپنی زندگی سے کھیلنے لگ گئی، اور ان سب کا مجھے جو نتیجہ بھگتنا پڑا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میرا نام عنبر ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر بھی صرف 2 کمروں کا تھا، جس کی چھت بانس اور سرکنڈوں سے بنائی گئی تھی۔ ہر سال اماں چھت پر جا کر اس پر مٹی سے لیپ کرتی تھیں، نہیں تو بارشوں کے دنوں میں چھت ٹپکنے کا خطرہ سر پر کسی تلوار کی طرح لٹکتا رہتا تھا۔ اماں نے کئی مرتبہ ابا سے کہا کہ کچھ پیسے جمع کر کے گھر کی چھت پکی کروا لو، لیکن ابا ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے کہ تم سب کا پیٹ پالوں یا پیسے جوڑوں۔ اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، تم پیسے جوڑنے کی بات کرتی ہو۔ بس پھر اسی بات پر اماں اور ابا کی لڑائی ہو جاتی تھی، اور یہ لڑائی کوئی نئی نہیں تھی۔ ہم بچپن سے یہی سب اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میرے ابا سوکھی روٹی اور ٹین ڈبے کا کام کرتے تھے۔ وہ تو شکر تھا ریڑھی اپنی تھی، ورنہ اس کا بھی کرایہ دینا پڑتا تو روٹی بھی 2 ٹائم نہ پکتی۔ ابا صبح صبح ریڑھی لے کر نکل جاتے اور گلی گلی جا کر صدائیں لگاتے تھے۔ شام کو مغرب کے بعد ان کی واپسی ہوتی۔ جو تھوڑا بہت کما کے لاتے تھے اسی سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہمارے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی۔ اماں شام کے سائے ڈھلتے ہی لالٹین جلا دیا کرتی تھیں۔ گھر میں 3 لالٹین تھی، ایک کمرے میں، ایک برآمدے میں اور ایک صحن میں جلا کرتی تھی۔ صحن والی لالٹین کو ہی واش روم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گھر میں ہم صرف 4 لوگ ہی رہتے تھے، اماں، ابا، میں اور میری چھوٹی بہن جس کا نام حورین تھا۔ اماں ابا نے اپنے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر محبت کی شادی کی تھی۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہی حقیقت تھی کہ اماں اور ابا نے گھر سے بھاگ کر ایک دوسرے کو اپنایا تھا۔ وہ دونوں ایک گاؤں میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ان کے گھر بھی برابر برابر تھے۔ شروع سے ساتھ کھیلتے ہوئے جوان ہوئے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ کب دوستی محبت میں بدل گئی اماں ابا کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب بات بہت آگے نکل گئی تو ابا اور اماں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر لیا، مگر دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ اس رشتے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ دونوں گھروں میں بہت زیادہ میل ملاپ تھا، لیکن دونوں کی ذات برادری الگ تھی، اور اس زمانے کے لوگ ذات برادری کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ بس اسی وجہ سے ابا اور اماں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات منصوبے کے تحت گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ کر بس گئے۔ گاؤں چھوڑنے سے لے کر شہر آنے تک، اور پھر نکاح ہونے سے کرائے کا گھر لینے تک، ابا کے ایک دوست نے ان کی مدد کی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے دونوں نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا بڑا ہاتھ مارنے کی بھرپور کوشش کی تھی، تاکہ آگے چل کر کم سے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ میری نانی نے اماں کی شادی کے لیے زیور بنوا کے رکھا ہوا تھا، جو کہ اچھی خاصی مالیت کا تھا۔ اسی طرح ابا کے گھر والوں نے زمین خریدنے کے لیے کچھ رقم الگ سے رکھی ہوئی تھی، اور ابا اس بات کو جانتے تھے۔ دونوں کے گھر والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں اور ابا نے اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اماں نے وہ زیور چرا لیا اور ابا نے گھر سے نکلتے ہوئے اس رقم پر ہاتھ صاف کیا، اور پھر شہر آنے کے بعد جب اماں ابا نے نکاح کر لیا تو زیور بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ اس وقت یہ گھر اچھی کنڈیشن میں تھا، اسی میں انہوں نے اپنی دنیا بسا لی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے، لیکن ابا کا کوئی کام نہیں لگتا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ شہر میں کچھ کمانے کے لائق ہوتے۔ پھر دوست کے مشورے سے جو پیسہ گھر سے لائے تھے اسے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگا کر قسمت آزمانے کی کوشش شروع کر دی۔ پہل ابا نے چھوٹے سے پیمانے پر کپڑے کا کام شروع کیا، لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے الٹا نقصان ہی اٹھایا۔ اس کے بعد ابا نے جوتوں کا ایک سٹال لگا لیا، وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی حالات سامنے آئے۔
इसी तरह 2-3 काम और किए मगर किसी काम में भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा था। उल्टा सारे पैसे ख़त्म होते गए। फिर घर से लाई हुई रकम का जो आखिरी हिस्सा बचा था उसी से अब्बा ने एक रेहड़ी खरीद ली। पहले उस रेहड़ी पर सब्जी और फल फ्रूट लगाकर बेचते थे, लेकिन फिर जब मेरी पैदाइश हुई तो खर्चा एकदम ज़्यादा होने की वजह से मंडी से फल ना उठा सके। इसी तरह वो काम भी हाथ से निकल गया। फिर अब्बा ने सूखी रोटी और टीन डब्बे का काम शुरू किया और उसी में सारी जिंदगी गुजार दी। अम्मा को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में दोनों ही अपने अपने घरों में तंगी और परेशानी देखने के आदी नहीं थे। बचपन से लेकर जवानी तक वो ऐश में जिंदगी गुजारी थी। जिस चीज़ पर हाथ रखा वही चीज़ मिल जाती थी। अच्छा खाते और अच्छा पहनते थे, मगर शादी के बाद हालात बद से बदतर होते गए और साथ ही आटे दाल के भाव ने मोहब्बत को बेमोल करना शुरू कर दिया। अम्मा अपने और मेरे अखराजात के लिए अब्बा से पैसे मांगती तो अब्बा के पास पैसे नहीं होते थे। इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता था। एक दिन तो अम्मा ने यह भी कह दिया कि क्या हमें भूखा मारने के लिए यहाँ लेकर आए थे। ये बात अब्बा के दिल पर लगी। फिर उन्होंने बहुत मेहनत करने की कोशिश शुरू कर दी। अपनी जान मार के सर्दी गर्मी धूप छाँव में काम करते रहे। दिन देखा ना रात। तबीयत भी खराब होती तब भी रेहड़ी लेकर निकल जाते थे, क्योंकि अब्बा जानते थे कि अगर वो एक भी दिहाड़ी ज़ाया करेंगे तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और फिर एक बच्चे के साथ अखराजात भी बढ़ चुके थे। अम्मा को शुरू से ही इस बात पर एतराज़ था कि जो घर अब्बा ने ख़रीदा है उसमें बिजली तक नहीं थी। ऊपर से उसकी छत कच्ची थी। अम्मा बहुत डरती थीं कि कभी तेज़ बारिश या तूफ़ान में छत हम पर गिर ही न जाए, लेकिन अब्बा हमेशा अम्मा को तसल्ली दे देते। हमारा घर उस वक्त शहर से थोड़ा हट के एक नए इलाके में था, इसीलिए जेवर बेचकर इतने ही पैसों में मिल गया था, वरना शहर में तो छोटा सा घर लेना भी अम्मा और अब्बा के लिए मुमकिन न था। जब अब्बा ने घर ख़रीदा था तो अम्मा से यही कहा था कि जल्द ही बिजली भी लगवा लेंगे, मगर अब तो मेरी पैदाइश को भी 6 महीने गुजर गए थे, घर में बिजली नहीं लगी थी। अम्मा ने आस पड़ोस में बिजली की एक तार लेने की बात की तो किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। लाख रो धोकर अम्मा लालटेन जलाकर ही गुजारा करने लग गई। फिर अम्मा को मेरे लिए हर चीज़ चाहिए थी जो अब्बा लाकर नहीं दे सकते थे, बल्कि मेरे लिए जो पहली शॉपिंग अम्मा ने अब्बा के साथ जाकर की थी वो भी सस्ते बाजार की रेहड़ियों से हल्के कपड़े खरीदे थे। अम्मा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे अब्बा से बेशुमार गिले शिकवे थे, लेकिन अब्बा कर भी क्या सकते थे। उनके हाथ में तो कुछ नहीं था। वो मेहनत कर सकते थे जो वो कर रहे थे। उसके बावजूद घर के हालात वैसे के वैसे ही रहे। मैं जब 3 साल की हुई तो मेरी छोटी बहन दुनिया में आ गई। मेरा रंग और नैन नक्श भी अच्छे खासे थे, मगर हुरैन तो मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा गोरी और खूबसूरत लगती थी। अगर हम दोनों बहनों को एक साथ बिठाकर देखा जाए तो मेरी साफ रंगत हुरैन के सामने सांवली लगने लग गई। इसी वजह से अम्मा ने हुरैन का नाम ये रखा था। अब हुरैन की पैदाइश के बाद अम्मा को मेरे स्कूल जाने की फ़िक्र लग चुकी थी। अम्मा चाहती थीं कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जाऊं। इस सिलसिले में अम्मा ने करीबी प्राइवेट स्कूलों में जाकर फ़ीस वगैरह का भी पता किया, लेकिन कम से कम फ़ीस वाले स्कूल में भी अम्मा मुझे दाखिल ना करवा सकी। इसी तरह की कई छोटी छोटी बातों पर अम्मा अब्बा के झगड़े होते रहते थे। जब भी वो लड़ते झगड़ते एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते थे। मैं उनकी तेज़ तेज़ आवाज़ों से सहम जाया करती थी। हुरैन भी रोने लग जाती तो मैं उसे अपनी छोटी सी गोद में लिटाकर खामोश करवाने की नाकाम कोशिश करती थी। मैं 4 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक मेरा दाखिला किसी स्कूल में नहीं हुआ था। अम्मा की ज़िद थी कि वो मुझे प्राइवेट स्कूल में ही दाखिल करवाएगी, जबकि अब्बा चाहते थे कि वो मेरा दाखिला करीबी सरकारी स्कूल में करवा दें। वहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे और वही पूरे इलाके में एक बड़ा सरकारी स्कूल था। जब अम्मा की ज़िद को 1 साल गुजर चुका और मैं 4 साल की हो गई तो अम्मा ने घुटने टेक दिए, क्योंकि इस तरह तो मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाती। अब्बा ने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। सुबह के वक्त वही मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और वापसी पर अम्मा लेने जाया करती थीं। बड़ी मुश्किल से रो धोकर अम्मा ने मेरे लिए एक यूनिफॉर्म और शूज़ खरीदे थे, और फिर जब मैं पहली क्लास में पहुंच गई उस वक्त तक वही यूनिफॉर्म पहना करती थी, जो कि मेरा छोटा हो चुका था।
बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं अम्मा के सामने रोने लग जाती तो वो अब्बा से लड़ने बैठ जाती थी। फिर कुछ अरसे बाद हुरैन भी मेरे साथ स्कूल जाने लग गई। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से मैंने होश संभाला था एक भी दिन ऐसा गुजरा जब अम्मा और अब्बा की लड़ाई नहीं होती थी। धीरे धीरे तो ऐसा होने लग गया कि दोनों ने ही हम पर तवज्जो देनी छोड़ दी। अब्बा अपने काम में मसरूफ रहते और अम्मा बेचारी अब्बा से लड़ झगड़ कर सारा दिन सर पर दुपट्टा बांध के लेटी रहती थी। दिल करता तो उठ के खाना बना लेती, वरना घर के सारे काम यूं ही पड़े रहते थे। हम दोनों बहनें स्कूल से वापस आती तो भूख के मारे हमारी हालत बुरी होती थी, मगर अम्मा हमें रोटी देने की बजाय बातें सुनाना शुरू कर देती। हालांकि घर के ऐसे हालात होने में हम दोनों का तो कोई कसूर नहीं था। कसूर तो असल में उनका भी नहीं था, लेकिन शायद जो धोखा उन्होंने अपने माँ बाप को दिया था अब उसी की सज़ा काट रहे थे। जब मैं 5वीं क्लास में पहुंच गई उस वक्त पहली मर्तबा अम्मा और अब्बा की शादी की हकीकत हम दोनों बहनों को मालूम हुई थी। हुरैन तो छोटी थी, इसीलिए ज़्यादा बातों को समझती नहीं थी, मगर मैंने अपनी समझ के मुताबिक जिस चीज़ को एडॉप्ट किया था वो एक ऐसी सोच थी जिसने बाद में मुझे तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं उस वक्त 12 साल की थी जब अम्मा ने मुझे अपने और अब्बा के बारे में बताया था, क्योंकि मैं उनसे पूछती थी कि हमसे कोई भी मिलने नहीं आता और ना ही हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, जबकि मेरी सारी सहेलियां अपने ददियाल में रहती थीं और छुट्टियों में ननियाल जाया करती थीं। सिर्फ एक मैं ही थी जो कभी भी कहीं नहीं गई थी। मैं अम्मा से अक्सर ये सवाल करती रहती थी। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे सारी बात बता दी। उसी दिन से मैंने जहन बना लिया कि मैं भी मोहब्बत की शादी करूंगी, मगर अम्मा की तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि मैं मलका बन के राज करूंगी। पता नहीं मेरी सोच कब से और क्यों थी, मगर जब मैं जवान हुई तो उसी सोच पर अमल करने की कोशिश मैंने शुरू कर दी थी। मगर एक कोशिश तो बहुत अरसा पहले की थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 12 साल की थी। उसी वक्त मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था जो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, और ऐसा तब हुआ था जब अम्मा ने अपने और अब्बा के बारे में मुझे बता दिया था। लेकिन वो लड़का कभी भी ना तो मुझसे बात करता था और ना ही मेरे साथ खेलता था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता। मेरा दिल चाहता था कि वो मुझसे बात करे, मेरे साथ खेले, लेकिन वो तो बस हर वक्त पढ़ने में ही मसरूफ़ रहता था। फिर जब हम नई क्लास में गए तो स्कूल में 6ठी क्लास से सिर्फ लड़कियां ही वहाँ रह जाती थीं। लड़कों को दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता था। इसी तरह वो लड़का भी मेरे स्कूल से चला गया। कुछ अरसे बाद मैं अपनी पहली पसंद को भूल चुकी थी, मगर मेरी सोच पुख्ता होती जा रही थी। मैं जिस तरह के माहौल में बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर हसरतें और महरूमियाँ बहुत ज़्यादा थीं। जब छोटी थी तो मेरा भी दिल चाहता था कि बाकी बच्चों की तरह मेरे पास भी अच्छे अच्छे खिलौने हों, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, और जब स्कूल गई तो मेरे पास सबसे ज़्यादा हल्की और बेकार चीज़ें होती थीं। बड़े होने के साथ साथ मुझे अपने आप पर और अपने रहन सहन पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अम्मा और अब्बा की लड़ाइयों ने मेरे दिल और दिमाग पर ऐसे असरात कायम किए कि मेरे नज़दीक लड़ाई झगड़ा मामूली सी बात बन गई थी। मैं स्कूल में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने लग गई। जिस दिन अम्मा मुझे मारती, मैं हुरैन को रुलाने की कोशिश करती थी। कभी उसे छुपके से थप्पड़ मार देती तो कभी उसके बाल नोच दिया करती थी। वो रोती तो मुझे खुशी महसूस होती थी। ऐसे ही स्कूल में मैंने बच्चों के साथ अजीब सा रवैया रखना शुरू कर दिया। अगर कोई मुझे कुछ कहता या किसी बात से रोकता तो मैं उसकी कोई ना कोई चीज़ या तो गुम कर देती थी या तोड़ देती थी। अम्मा ने कभी भी पढ़ाई के हवाले से हम दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। हालांकि पहले वो अब्बा से इस बात पर लड़ती थी कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना चाहती थी, मगर उसने तो कभी हमारा बैग खोल कर भी नहीं देखा था कि हमारे पास कोई कॉपी है या नहीं, या हमने काम भी किया था या नहीं। बस ऐसे माहौल में पलकर जवान होने वाले बच्चे कैसे होते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। मैं बड़ी हो गई थी और जितनी मेरी उम्र थी उससे कहीं ज़्यादा लंबी मेरी ज़बान। मैं अम्मा और अब्बा से भी बदतमीज़ी करने लग गई थी। अम्मा की कोई बात न सुनती और उन्हें धड़ाधड़ जवाब देती। मेरी इस आदत की वजह से अम्मा मुझ पर जवानी में भी हाथ उठाती। हुरैन ये सब कुछ देखती थी, इसीलिए उसने मेरी कोई भी आदत को नहीं अपनाया था, बल्कि जब भी अम्मा मुझ पर गुस्सा करती, मुझे मारती तो हुरैन भाग भाग कर घर के काम करने लग जाती थी ताकि अम्मा उससे कुछ ना कहें।
इस तरह वो छोटी उम्र से घर के काम काज करने लग गई। हालांकि वो स्कूल भी जाती थी, लेकिन घर के काम भी बड़े शौक से कर लेती थी। इस वजह से अम्मा उसे पसंद करती थीं, क्योंकि एक तो उसने कभी अम्मा से बदतमीजी नहीं की थी, दूसरा वो अम्मा की एक आवाज़ में फौरन उठकर काम निपटा देती थी, जबकि मैं ढीठों की तरह बिस्तर पर लेटी रहती। मैंने 8वीं पास करके स्कूल भी छोड़ दिया था। अब्बा ने बड़ी कोशिश की और मुझे समझाया भी, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। मुझे तो बस शादी का शौक़ चढ़ा हुआ था। मैं 18 साल की हो गई थी। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि अब क्या मुझे बूढ़ा करोगी, मेरी शादी भी कर दो। ये सुनकर अम्मा ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी और फिर मेरा रिश्ता देखने लग गई। हमारे जवान होने तक घर के हालात थोड़े बेहतर हो गए थे। अब्बा ने टीन डब्बे का काम छोड़कर कबाड़ की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था, जहां से मुनासिब दिहाड़ी मिल जाती थी। घर में कुछ साल पहले बिजली भी लग गई थी और अब्बा ने छत भी पक्की करवा दी थी, क्योंकि अम्मा रोज़ाना अब्बा को बिजली और छत के मामले में बातें सुनाती थीं। अब्बा ने कुछ कर्ज वगैरह उठाकर दोनों काम कर दिए और इतने साल गुजरने के बावजूद वो उसकी किस्तें उतार रहे थे। ऐसे में वो मेरी शादी के लिए भला क्या कर सकते थे, और मुझे तो जहेज चाहिए था। मैंने साफ साफ अम्मा से कह दिया था कि मुझे उसमें फर्नीचर भी लूँगी, मगर मुझे अपनी हर फरमाइश के बाद सिर्फ गालियाँ ही मिलती थीं। अम्मा मेरे लिए 2-4 रिश्ते तो देख चुकी थी, मगर कहीं पर बात बनती नज़र नहीं आ रही थी। अम्मा चाहती थी कि मेरी शादी ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल का झंझट ना रहे, कोई लड़का अकेला ही रहता हो, या फिर छोटी सी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी बदज़बान और बदतमीज़ बेटी भरे ससुराल में गुजारा नहीं कर सकती। फिर अम्मा ने मेरे लिए नवीद का रिश्ता कबूल कर लिया। नवीद अपने माँ बाप और एक छोटी बहन के साथ रहता था। किसी बड़े करियाने की दुकान पर काम करता था। घर उनका अपना था, इस वजह से अम्मा को ये रिश्ता मुनासिब लगा और अम्मा ने चट मंगनी पट ब्याह वाली बात की और बहाना ये बनाया कि लड़के वालों को जल्दी है और जल्दी में हम भला कितना जहेज बना सकते हैं। 2-4 बर्तन और चंद जोड़े देकर मुझे घर से रुखसत कर दिया। मैं तो अपनी शादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने तो सोच रखा था कि जहाँ मंगनी होगी उससे फ़ोन पर बातें करूँगी, उससे गिफ्ट लिया करूँगी, कुछ इश्क मोहब्बत चलेगा, फिर कहीं जाकर शादी करूँगी और ढेर सारा जहेज लेकर जाऊँगी। मगर मेरी तो कभी कोई चाहत पूरी होती ही नहीं थी, बल्कि हसरतें ही हसरतें थीं। दुल्हन बनकर जिस घर में गई वहाँ भी मुझे अपनी मर्जी का कुछ नहीं मिला। बड़ी बहू होने के नाते मुझ पर सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया गया। ना बरी में कोई ढंग का जोड़ा था और ना ही मुझे जेवर चढ़ाया गया था। मेरी नंद हुरैन से भी छोटी थी और वो स्कूल में पढ़ती थी। सास साहिबा तो अपनी बेटी को किसी काम के लिए जहमत नहीं देती थी और वो भी पढ़ाई का बहाना करके हर वक्त किताबें खोल कर बैठी रहती। ले देकर सारा काम मुझ पर ही आ गया था और मैं तो शुरू से ही कामचोर थी। अब कभी मुझसे सालन जल जाता तो कभी रोटी कच्ची रह जाती थी। बर्तन धोती तो कांच का बर्तन टूट जाता, सफाई करती तो आधी करके ही छोड़ देती थी। शुरू में तो मेरी सास ने मेरे साथ कुछ रियायत बरती, लेकिन जब मैं मुसलसल यही सब करती रही तो वो भी असली वाली सास बन गई। मगर मैं कहाँ किसी से दबने वाली थी। मैंने सास का मुकाबला भी पूरी ताकत से किया। अगर मुझे मेरी सास एक बात सुनाती तो मैं उसे 2 सुनाती थी, क्योंकि मेरे पास बातें सुनाने के कई जवाब थे, जो जहेज से शुरू होकर घर में नौकरानी बनने तक आकर ख़त्म होते थे। मैंने तो अपने शौहर को भी नहीं बख्शा था। कभी मैं सूट की फरमाइश कर देती तो कभी कुछ खाने पीने की, मगर वो दिहाड़ी लगाने वाला बंदा कहाँ से मेरी फरमाइशें पूरी करता। उसकी दिहाड़ी पर तो माँ का कब्जा था। मेरा तो ऐसे घर में रहना मुहाल हो चुका था। मैं किसी न किसी तरह वहाँ से जान छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए जी भर के बदज़बानी करती रही और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। नवीद ने अपनी माँ के कहने पर मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही मैं तलाक का दाख लेकर अपने माँ बाप की दहलीज पर आ चुकी थी, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख था ना मलाल, जबकि अब्बा तो मेरी तलाक के बाद से बिल्कुल खामोश ही हो गए थे। मेरी तलाक की वजह से अम्मा अब्बा और हुरैन भी परेशान थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैं तो बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी कि ऐसे ससुराल से मेरी जान छूट गई जो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते थे।
मैं अम्मा को भी यही बताती थी, मगर अम्मा मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करती थी। मैंने अम्मा के घर आने के बाद दोबारा से वही सब करना शुरू कर दिया। मुझे कितनी मर्तबा अम्मा ने इद्दत पूरी करने के लिए कहा, मगर मैं उनकी बात मानती ही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मैं एक दिन बाहर चली गई। अम्मा ने अपना सर पीट लिया, कहने लगी, न जाने मैंने कौन से गुनाह किए थे जो मुझे तुम जैसी औलाद मिली। तो मैंने भी मुंह भर के अम्मा को जवाब दे दिया कि अपने माँ बाप का दिल दुखा के उनको बदनामी देकर अब्बा के साथ चली आई थी। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? हो सकता है मैं उसी की सज़ा बनकर तुम्हें मिली हूँ। ये सुनकर तो अम्मा पर जैसे बिजली गिर पड़ी, मगर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। अम्मा की ऐसी हालत देखकर मुझे हंसी आने लगी। हुरैन ने मुझे फौरन टोका कि माँ के साथ ऐसे बात नहीं करते, तुम्हें तमीज़ नहीं है। मैंने उसे भी 4 बातें सुनाई और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद तो मैंने एक आध काम करना भी छोड़ दिया था। अब्बा तो मुझसे कुछ कहते ही नहीं थे, चुपचाप अपने काम पर चले जाते और वापस आते हुरैन से ही बात करते थे। अब वो बूढ़े हो गए थे, उनसे ज़्यादा काम और मेहनत नहीं की जाती थी। अम्मा कहती कि इससे अच्छा होता कि तू हमारी बेटी होने के बजाय बेटा होती, तो आज किसी काम भी आती। मैंने अम्मा से कहा कि तुम इजाज़त दो तो मैं बाहर निकल जाती हूँ और तुम्हें कमा कर खिलाती रहूँगी। अम्मा मेरी बात सुन के खामोश हो गई, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती थी कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, ना ही मैं पढ़ी लिखी थी। भला मुझे किसने नौकरी देनी थी? अलबत्ता हुरैन ने मैट्रिक कर रखा था। उसने मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी थी। अभी कुछ अरसा ही हुआ था, मगर मोहल्ले के बच्चे उसके पास ट्यूशन भी आने लगे थे। इस तरह वो फिर अखराजात में अब्बा का हाथ बटा रही थी। जाहिर सी बात है, जो बेटी घर के काम भी करती थी और कमाती भी थी, वही अम्मा अब्बा को अच्छी लगती। मैं तो अब वैसे भी उन पर बोझ बन चुकी थी, लेकिन मैं उन पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अम्मा से कहा कि मेरी दूसरी जगह शादी करवा दो, मगर वो लोग अच्छे होने चाहिए, अपने जैसे कंगाल दोबारा मत ढूंढ लेना। मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरा अम्मा मुंह देखती रह जाती, क्योंकि अब कुछ कहने या मारने का वक्त तो गुजर चुका था। फिर मैं रोज़ाना अपनी सहेली रुखसाना के पास उसके घर जाने लग गई। रुखसाना मोहल्ले में ही रहती थी और उसकी शादी भी उसके चचा के घर हुई थी, जो कि बराबर में ही था। मैं उससे मिलने जाती थी और 2-2, 3-3 घंटे उसके घर में गुजार देती। अम्मा मुझे मना करती थी, मगर मैं बाज नहीं आती थी, और अब्बा को तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि जब वो काम पर चले जाते थे तो मैं उसके बाद ही जाया करती थी। और अम्मा ने जानबूझकर अब्बा को कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि अम्मा जानती थी कि अगर अब्बा को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मुझे बहुत हैरत होती थी कि अब्बा बुढ़ापे में आकर अम्मा को अब्बा का ख्याल हो गया था। सारी ज़िंदगी तो लड़ते हुए गुजार दी, अब क्या फ़ायदा ऐसे ख्याल का। लेकिन मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था, मुझे तो सिर्फ किसी अच्छी जगह पे शादी करनी थी। मैंने रुखसाना से मेल जोल इसी वजह से बढ़ाया था कि वो मुझे किसी रिश्ते के बारे में बता सके। फिर उसने ही मुझे खालिद से मिलवाया था, जो उसका दूर परे का रिश्तेदार था। उसकी अपनी कपड़े की दुकान थी और अच्छा खासा काम चल रहा था। खालिद पहले से शादीशुदा था, मगर उसके यहाँ औलाद नहीं थी। बस उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसे अपनी चिकनी चपड़ी बातों में फंसा लिया, और वो भी बेवकूफ़ मेरी खूबसूरती और जवानी पर मर मिटा। फिर मेरे कहने पर ही उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भिजवा दिया। अम्मा ने तो उस रिश्ते से इनकार करना चाहा था, मगर मैंने पहले ही अम्मा को साफ साफ कह दिया था कि हर हाल में मैंने खालिद से ही शादी करनी है। अब्बा भी मेरी बात सुन चुके थे, इसलिए अपनी इज्जत रखने की खातिर अब्बा ने खालिद के साथ मेरा निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया। खालिद ने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अलग घर में रखेगा, मगर उसने तो पहले दिन ही वादा खिलाफी कर दी। मुझे ब्याह कर अपने उसी घर में ले गया जहाँ पर उसकी माँ, 3 बहनें और पहली बीवी रहती थी। खालिद के बाप का तो इंतकाल हो चुका था, मगर 2 बड़े शादीशुदा भाई भी उसी घर में रहते थे। बहनें तीनों कवारी थीं, जो मेरे सीने पर मूंग दनने के लिए वहीं बैठी हुई थीं, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। असल ख़तरा तो सौतन की तरफ से था, लेकिन ये सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा था। मगर कुछ दिन बाद ही मेरा अंदाज़ा हकीकत का रूप लिए मेरे सामने खड़ा हो गया था। मेरे ससुराल वालों को ये बात तो मालूम थी कि खालिद दूसरी शादी कर रहा है,
اور انہوں نے صرف بچے کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اسی لیے خالد ڈنکے کی چوٹ پر مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ مگر کچھ دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ساس، جیٹھانیاں اور نندیں بہت تیز تھیں۔ سوتن تو خاموش رہتی تھی، کسی بات میں نہیں بولتی تھی، زیادہ تر گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہتی، مگر مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ چوری چھپے میری ساس کے کان بھرتی ہے، کیونکہ ایک تو وہ میری ساس کی سگی بھانجی تھی، اسی وجہ سے اسے بڑی پسند تھی، اور پھر گھر کے کام بھی وہ سنبھال رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے گھر کے کام کاج کرنے شروع کر دیے تاکہ بڑی بی کے دل میں جگہ بنا سکوں، مگر میری ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ان لوگوں کو نہ تو میرا کھانا پسند آتا تھا اور نہ ہی کوئی اور کام۔ ہر بات میں کیڑے نکالنا ان کا فرض تھا۔ پہلے تو میں خاموش رہی، لیکن پھر میں نے بھی سیدھی ہونے کی ٹھان لی۔ اگر کوئی مجھے کچھ کہتا تو اسے ٹکا سا جواب دے دیتی تھی، کیونکہ مجھے اس بات پر بڑا غرور تھا کہ خالد میرے ساتھ ہے۔ مگر جب میری شادی کو 6 مہینے گزر گئے اور بچے کی کوئی امید نہ بنی تو سسرال والوں کا رویہ تھوڑا اور بھی عجیب ہو گیا۔ اسی دوران حورین کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ایک شادی شدہ بہن تھی۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ حورین کے ساتھ ساتھ اماں اور ابا کو بھی اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، اور پھر اس نے ایسا کیا بھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ اماں ابا کو اپنے ساتھ لے گیا اور ابا کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا۔ میں کبھی کبھی اماں ابا سے ملنے حورین کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کا گھر بڑا اچھا تھا اور پھر روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ تو بڑے عیش سے وہاں رہ رہی تھی، اور اماں ابا کی بھی زندگی بڑھاپے میں جا کر سنور گئی تھی۔ ایک صرف میں ہی تھی جو ایسے ظالم سسرال کے پلے پڑ گئی تھی۔ اگر خالد میرے ساتھ نہ دیتا تو پتہ نہیں میرا وہاں گزارا کیسے ہوتا۔ میں خالد کی وجہ سے اپنی من مرضیاں کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتی تھی اور خریداری بھی خوب کرتی تھی۔ خاص طور پر میں نے جوڑے بہت بنائے تھے۔ میرے سسرال والوں کو تو ویسے بھی میری ہر بات پر اعتراض رہتا تھا، تو وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے؟ پھر میری ساس نے مجھ پر یہ بوجھ ڈالنے کے لیے گھر کے کام بانٹ دیے۔ روزانہ ایک بہو گھر کا پورا کام کرتی تھی۔ جس دن میری باری ہوتی اس دن کوئی بھی میری مدد نہیں کرواتا تھا۔ میں سارا دن بڑی مشکل سے کام نپٹاتی۔ مجھے وہ کرنے پڑتے تھے، کیونکہ اگر میں گھر کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتی تو باقی 3 بہوؤں کا ہی راج وہاں بنا تھا۔ ایسے ہی میری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن امید سے تھی اور کوئی خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن میں اب اس امید پہ زندہ تھی کہ جلد ہی اپنے سسرال والوں کو اولاد کی خوشخبری دوں گی تو میری بھی کچھ قدر و قیمت ہو جائے گی، کیونکہ خالد نے اسی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ مگر وقت کا گھیرا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، مگر اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو خالد بھی اپنا رویہ میرے ساتھ بدل دیا تھا۔ ماں کی باتوں میں آ کر مجھ پر غصہ بھی کرتا تھا اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، مگر اس جنجال پورے سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن میں اب کہاں جا سکتی تھی؟ اب تو ماں باپ بھی میرا حال تک پوچھنے کو کئی دن لگا دیتے تھے۔ اور پھر ابا کے اچانک انتقال نے میری امید کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں چپ چاپ خالد کے گھر میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دوں، مگر میں اولاد ہونے کی طرف سے ابھی بھی نا امید نہیں ہوئی تھی۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب میری سوتن امید سے ہو گئی۔ پھر تو میری ساس کی ساری توجہ اسی کی طرف چلی گئی، اور وہ بھی جی بھر کے نخرے دکھا رہی تھی۔ میں جو بچے کی وجہ سے اس گھر میں بیاہ کر لائی گئی تھی، اب اپنی سوتن کی ملازمہ بن کر رہ گئی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا اور پھر رات کو ساس کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ خالد تو اب روزانہ میرے کمرے میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن میں کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حورین دوسری مرتبہ ماں بننے والی تھی، اور اسی سال خالد کے ہاں بیٹے کی پیدائش نے میری رہی سہی حیثیت بھی ختم کر دی۔ میں آج بھی خالد کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہوں۔ میری سوتن کی گردن غرور سے تنی رہتی ہے، کیونکہ اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی، اور میری گود اب تک خالی کی خالی تھی۔ لیکن میں بہت بدل گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ انسان کو زندگی میں روپیہ پیسہ قدر نہیں کرواتا، بلکہ اس کی اصل پہچان اس کے رشتوں سے ہے۔
کاش میں وہ سب نہ کرتی جو میں نے کیا تھا، تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔